عمل بتاتا ہوں سورت اخلاص کا۔ میں نے کئی لوگوں کو، یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، پہلے درود پاک پڑھے، میں نے کئی لوگوں کو صرف چاشت کے عمل سے، فرض نماز تو پڑھتے ہیں، نوافل میں چاشت کے عمل سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے۔ فجر کی نماز کے 1 گھنٹے بعد چلو طے کر لیں اشراق ہے، اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد چاشت، بس آسان آپ کو طریقہ بتا دیا۔ دکان ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، جہاں بھی ہے وہاں ذرا تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اور چاشت کے کتنے نفل ہوتے ہیں؟ کم از کم 4۔ وہ 4 نفل ایک ہی سجدے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جدا جدا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی چاروں ایک ہی سجدے سے پڑھ سکتے ہیں، جدا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو بندہ چاشت کی 4 رکعت پڑھنے کی ترتیب زندگی میں بنا لے گا، میں نے بہت لوگوں کو چاشت کے نفل کی وجہ سے خوشحال ہوتے دیکھا ہے، بامراد ہوتے دیکھا ہے، قرضے اترتے اور قرضوں کے بوجھ ہٹتے، میں نے یہ دیکھا ہے۔ اور بہت تجربہ، بارہا تجربہ، اور زندگی کا ایک حصہ میرا گزرا ہے ان روحانی مشاہدات و تجربات میں۔ آج بھی طالب علم ہوں میں نے اس کے بہت تجربات دیکھے اور بہت مشاہدات دیکھے، اور حیرت انگیز تجربات، مشاہدات اس کے دیکھے ہیں کہ جو بندہ چاشت کے 4 رکعت کم از کم پڑھ لے، یہ 4 رکعت جو پڑھ لے گا، آپ اس پہ ٹائم نوٹ کیجئے گا، کبھی بھی 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، توجہ سے دھیان سے پڑھیں بھی تو 10 منٹ لگتے ہیں۔ پر یہ اشراق کے نفل جو چاہتا ہے کہ میری نسلیں خوشحال ہو جائیں اور میری زندگی خوشحال ہو جائے، اور خوشحال بھی کیسی ہو، اور بتاؤں خوشحال بھی کیسی ہو، خوشحال بھی ایسی ہو کہ کسی کی نہ جیب پہ نظر پڑے، نہ کسی کی امداد ہو، نہ کسی کی مدد ہو، نہ کسی کا ہاتھ اوپر کا ہو اور میرا نیچے کا ہو، بالکل ایسا نہ ہو۔ اللہ غیبی نظام چلاتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ غیب سے اور غیبی نظام چلاتا ہے اور غیب سے عطا کرتا ہے۔ جو یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اشراق پڑھنی ہے، چاشت میں یہ نفل چاشت کے پڑھنے ہیں، اچھا یہی نفل، یہی عمل اشراق میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن میں نے جو تجربے کیے ہیں چاشت کے، اشراق کے، اپنے فائدے، اس کی اپنی تاثیر، نہ انکار، ہمیشہ اقرار، لیکن جو میرا تجربہ ہے خوشحالی کے لیے، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ انسان اس وقت کچھ مصروف ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں مصروفیت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج تک سورج نکلتے نہیں دیکھا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تسبیح خانے میں آنے کے بعد میں عید پڑھنے لگا، کیونکہ عید تو وہ پڑھ دے جو صبح اٹھے، میں تو رات کے آخری پہر کو سوتا ہوں اور دن کے کتنے بجے اٹھتا ہوں، میں آج تک عید نہیں پڑھ سکا۔ چاشت کے نفل، سورت قل ہو اللہ اس میں شامل ہو اور سورت اخلاص اس میں شامل ہو، اس کو میں نے بہت لوگوں کو بتایا، بہت لوگوں نے اپنے تجربات مجھے بتائے اور مشاہدات مجھے بتائے، کیونکہ ابھی حدیث میں ایک لفظ آپ نے سنا، وہ یہ لفظ سنا ہے صرف سورت اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے۔ سورت اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے۔ اب چاشت کی 1 رکعت میں جو بندہ چاشت کی رکعت میں 1 بار علم نشرح اور 1 بار قل ہو اللہ، بس کوئی مشکل نہیں، یہ آج میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں۔ پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح اور 1 بار سورت اخلاص، سورت قل ہو اللہ۔ پھر دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح، 1 بار قل ہو اللہ۔ تیسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح اور 1 بار قل ہو اللہ، اور چوتھی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 1 بار علم نشرح اور 1 بار قل ہو اللہ۔ سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے بعد سے زوال کے وقت سے پہلے تک چاشت کا وقت رہتا ہے۔ سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے بعد سے لے کر زوال کے وقت سے پہلے تک، یہ کیلنڈر ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں اپنے موبائل میں کہ زوال کا وقت کب ہوتا ہے، اس سے پہلے تک یہ جتنے بھی گھنٹے بنتے ہیں، ان سب گھنٹوں میں چاشت کا وقت رہتا ہے، چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ چاشت کا وقت بہت لمبا وقت ہے، اچھا خاصا وقت ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی خوشخبری ہے کہ چاشت کا وقت مختصر نہیں ہے۔
वैसे भी एक बात मशवरा दूं, आप चाश्त का अमल शुरू कर दें, मौका जब मिले चाश्त का अमल शुरू कर दें। अपने मन से पूछें कितनी देर मोबाइल को वक्त देता है, अपने तन से पूछें तो आप मन तन खुद बोलेगा कि मैं मोबाइल को जितना वक्त देता हूं उससे ज्यादा बेहतरीन वक्त अगर चाश्त को दूं, और पहली रकत में एक बार अलम नशरह और एक बार कुल हुवल्लाह, दूसरी रकत में भी, तीसरी रकत में भी, चौथी, आप 10 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। ध्यान से पढ़ें, फिर 10 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो क्या ख्याल है 10 मिनट वक्त दे के अल्लाह के खजानों की कुंजियां ले लें? बोले हाँ जी, बताएं, बोले बताएं, सारे बताएं, जवान भी बताएं और जागते बाबे भी बचाएं। हाँ, जागते बाबे सारे बताएं कि क्या ख्याल है 10 मिनट में, बोले 10 मिनट में कुंजियां ले लें अल्लाह के खजानों की, अल्लाह के खजानों की कुंजियां ले लें। और यह सूरत इखलास की ताकत में यह चीज मौजूद है, सूरत इखलास की ताकत में यह तासीर मौजूद है। मैं एक दफा सहरा में गया, दूर एक टीले पे गया, मैंने कहा मौला पता नहीं कितने 100 साल, कितने 1000 साल से आज तक यहां सजदा नहीं हुआ। वो सहरा, ये पहाड़ तो हजारों साल पुराने हैं ना, बल्कि लाखों साल पुराने हैं। तो मैंने वहां नफिल पढ़े, और नफिल पढ़ने के बाद मैंने उस सहरा पे उंगली से सूरत इखलास लिखी, और इखलास लिखी, सूरत इखलास उंगली से लिखकर फिर उस रेत को जमा किया और उस रेत को बिखेर दिया, और अल्लाह से अर्ज किया, या अल्लाह जहां जहां भी इसके जर्रे जाएं वो सारे जर्रे क़यामत तक सूरत इखलास पढ़ के मेरे तराजू को भारी करें। बस एक अमल था, और वो उस करीम की अता के बहाने हैं, उसकी शफकत के बहाने हैं, और उसकी मेहरबानी के बहाने हैं। जैसे मैंने चाश्त के नफिल बताए हैं, पढ़ लिया करें, सफर में हैं, हजर में हैं, जहां भी हैं, गाड़ी में बैठे हैं ना, वावुजू हैं, नफिल की आप पढ़ सकते हैं, आप बैठे हुए नफिल पढ़ सकते हैं, आप खड़े होकर नफिल पढ़ सकते हैं, आप बिस्तर में नफिल पढ़ सकते हैं। मेरे आका का फरमान है, बाज लोग ऐसे होंगे जो बिस्तरों में बैठ के अल्लाह का जिक्र करेंगे और सीधे जन्नत में जाएंगे। अल्लाह का बड़ा निजाम है, मेरा अल्लाह बड़ा करीम है। देखें, दीन ने जहां रियायत दी है उसको लेना भी दीन है, अपनी तरफ से रियायत ना निकालें। अगर रियायत दी भी है तो उसको लेना भी दीन है। जहां रियायत निकाली अल्लाह ने दी है उस रियायत को ले लें, जहां नहीं दी उसको अपनी तरफ से खुद साख्ता ना करें। उस रियायत लेने पे अल्लाह राजी हो जाएगा, अगर कोई रियायत नहीं ली उस रियायत ना लेने पे अल्लाह राजी हो जाएगा। कुछ छोटे छोटे अमल ऐसे होते हैं जो जिंदगी में बंदा शामिल कर ले। पूरे 24 घंटों में कितने मिनट होते हैं? 14 से 40 मिनट हुए। इस 14 से 40 मिनट में 10 मिनट भी नहीं अपनी जिंदगी के लिए, अपनी नस्लों के वक्त, नस्लों की खुशहाली, नस्लों की तमंगरी, नस्लों के लिए इज्जत दौलत बरकत के खजाने, राहत रहमत के खजाने, नस्लों के लिए इतना वक्त नहीं है हमारे पास। सूरज निकलने के 1.5 घंटे के बाद से जो शुरू हुआ कब तक रहा? और बाज रिवायात में है सूरज निकलने के 1 घंटे बाद, क्योंकि सूरज निकलने के 20 मिनट बाद तो इशराक का वक्त शुरू हो जाता है। लिहाजा फिर चाश्त पढ़ेंगे, 10 मिनट देंगे, 1400 कितने मिनट? 40 मिनट में 1410 मिनट अल्लाह को दे दें, 30 मिनट अपने पास रख लें अपने पास और अल्लाह को दे दें। अल्लाह कहते हैं अच्छा, वालिद लाया मिठाई का डब्बा, उसने डब्बा दिया, एक लड्डू दे दिया, बाकी छुपा दिया, और दे के कहता है मेरे बेटे मुझे तो दे। बेटा छुपाता है, अगर दे देता है तो खुश होकर कहते हैं नहीं मैं तेरे लिए लाया था, ये सारा डब्बा तेरा है। और अगर बेटा नहीं देता तो दिल अफसुर्दा होता है, लेकिन फिर भी डब्बा होता बच्चे का है। मेरा अल्लाह कहता है 1440 मिनट दिए हैं, 10 मिनट मुझे दे दे, तेरी नस्लों को खुशहाल कर दूंगा। बस और क्या चाहिए? 10 मिनट मुझे दे दे, तेरी नस्लों को खुशहाल कर, तेरी नस्लों को आबाद कर दूंगा, शाद कर दूंगा। नहीं समझ आई?
ना नहीं ना। फिर एक और चीज बताता हूं। मुर्गी क्या करती है, 21 दिन का चिल्ला काटती है, अंडों पे बैठती है, हस्ब जरूरत खाना खा भी लेती है, पानी भी पी लेती है, बाकी सारा वक्त बैठ के अंडों के ऊपर बैठती है। 21 दिन के बाद उसके ऊपर फतूहात के दरवाजे खुलते हैं। सबसे पहले अल्लाह उसे फौज देता है, एक टीम देता है, एक जमात देता है। दूसरा, और जमात और टीम और फौज भी सीखी सिखाई देता है। बच्चे सीखी सिखाए होते हैं। बतख के बच्चे को बतख सीखना सिखाती है, बोले तैरना। दूसरा, अल्लाह पाक उस मुर्गी को एक शजात और जुर्रत देते हैं। पहले वो मुर्गी बिल्ली से डरती थी, अब बिल्ली से लड़ती है। मैंने खुद देखा, जब बच्चे आते हैं ना, मैंने उस मुर्गी को बिल्ली से लड़ते देखा। थोड़ा सा वक्त दे दें जिंदगी में, अल्लाह फिर सिफात और मराआत और अताओं की बरकतों की बारिशें अता कर देगा। आप 10 मिनट जिंदगी में अल्लाह को दे दें, 10 मिनट दे दें 24 घंटों में, और 4 रकात नफिल पढ़ लें इस चाश्त के, और पहली रकात में अलम नशरा और कुल्लुवल्लाह, इसी तरह चारों रकातों में दुआ मांग के उठ जाएं। अल्लाह का मामला अल्लाह के सब्र करें। अल्लाह गैब के खजाने से बरकतों, इज्जतों, दौलतों के और रहमतों के, खुशहालियों के, अताओं के अर्शों पे फैसले लेके देगा, फैसले लेके देगा, अर्शों पे फैसले लेके देगा। जो करे सो पाए, राहत भी, रहमत भी, बरकत भी, शफकत भी, अता भी, सफत भी, करम भी, मेहरबानी भी, जो करे सो पाए। अपनी जिंदगी में ना छोटे छोटे रंग भरते जाएं, रंग भरते जाएं, छोटे छोटे छोटे। जिंदगी बड़ी लाजवाब होती चली जाएगी। इसमें ज़ायके ही ज़ायके, इसमें मोहब्बत ही मोहब्बत, इसमें अता भी अता। बस ऐसे रंग भरते जाएं अपनी जिंदगी में, थोड़े थोड़े रंग भरते जाएं। शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स ये चाहता है कि वो हालत तौहीद में मरे, कुफ्र पर न मरे और खात्मा ईमान पे हो, यह बड़ा मुश्किल मसला है। कई वाकयात देखे कि लोग ईमान वाले थे लेकिन आखिरी वक्त खत्म हो गया, तो फरमाया उसे चाहिए वो कम अज कम रोजाना 50 बार सूरत इखलास पढ़ ले, जो कहता है मेरा खात्मा ईमान पे हो। और फरमाया कि जो अल्लाह से खालिस मोहब्बत करना चाहता है, अल्लाह से खालिस मोहब्बत करना चाहता है, वो सूरत इखलास पढ़े। फरमाया वो ऐसे है कि अल्लाह से मोहब्बत करेगा, और जो अल्लाह से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसको अल्लाह का वली कहते हैं। तो जो अल्लाह का वली बनना चाहता है वो खालिस क्या करे, सूरत इखलास पढ़े, सूरत इखलास। जहां और जिक्र हैं, जहां और तस्बीह हैं, जहां और आमाल हैं, वहां सूरत इखलास को भी अपनी जिंदगी के किसी गोशे में शामिल कर दे, कामयाब हो जाएगा, बामुराद हो जाएगा। जिंदगी भी, सेहत भी, तंदुरुस्ती भी, अता भी, शफकत भी, बरकत भी, रहमत भी, इंशाअल्लाह। अल्लाह को चंद मिनट दे दें, और बड़ा करीम है। थोड़ी सी मिन्नत पे मान जाने वाला, और थोड़ी सी मिन्नत पे मान जाने वाला, थोड़ी सी दरखास्त पे मान जाने वाला, और थोड़ी सी अता पे थोड़ा सा अल्लाह को दे दें, अल्लाह कहते हैं मैं राजी हो गया हूं। थोड़ी सी चीज पे वो राजी हो जाता है। आज के बाद अपनी जिंदगी में कोई 10 मिनट अल्लाह को दे दिया करें। अच्छा, ये 10 मिनट कौन से हैं ये भी जरा बता दूं। फर्ज नमाज तो बहुत जरूरी है, ये नवाफिल वो हैं जो इजाफी हैं। आप जो इजाफी लोगों को देते हैं वो जाके दिल पे पड़ते हैं। एक बंदे को उसकी उजरत दी 100 रुपए, और 10 रुपए उसको इजाफी दे दिए, सुन लें याद से, वो 100 भूल जाएंगे, 10 कभी नहीं भूलेंगे। 100 भूल जाएंगे, वो 10 कभी नहीं भूलेंगे। अल्लाह पाक भी फरमाते हैं मेरे बंदे, मुझे बस ऐसे 10 मिनट दे दे, तुझे और तेरी नस्लों के लिए खुशहाली के दरवाजे खोल दूंगा। तेरे और तेरी नस्लों के लिए खुशहाली के दरवाजे खोल दूंगा, खुशहाली के। तो मुझे 10 मिनट दे दे, फिर देंगे अल्लाह को 10 मिनट।